कक्षा 8वीं विषय हिंदी जेम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है। तो नेक्स्ट आगे के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमारा जो पाठ है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो आज हम अपना ये पाठ है आज हम पूरा कर देंगे। तो हम कहाँ तक पढ़े थे आगे के लेक्चर में ध्यान से सुनिए, थोड़ा रिवीजन भी कर देते हैं कि जो लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो कर्म को अपना उद्देश्य मानते थे, इसलिए उनको कर्मयोगी कहते थे। लाल बहादुर शास्त्री महान कर्मयोगी थे। तो ऐसी भावना उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। एमने શું હતું, એમને તો ઠેક પ્રધાનમંત્રીના પદ સુધી પહોંચી ગયા હતા। એ તો ક્યું માનતા હતા, એમને जनताना सेवक मानता હતા। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में लोकप्रियता पण मिली। એટલે કે છે કે એમને એ જે મંત્રાલયમાં બધાના કેવા બન્યા હતા, લોકપ્રિય પણ બન્યા હતા। साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। એટલે કે છે કે સાથે સાથે એમને દેશમાં બધાને કેવા હતા, પસંદ હતા, બધાની લોકપ્રિયતા મળી હતી એમને। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की कि वह एक उदाहरण है। એટલે કે એમને 19 માસ સુધીના પ્રધાનમંત્રીના પદ ઉપર રહીને એમને ઉલ્લેખનીય સફળતા અને લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરી હતી। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। એટલે કે એમનો જે ઉદ્દેશ હતો એ એકદમ સ્પષ્ટ હતો कि उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। એટલે એમનું નક્કી જ હતું કે મારે જે કરવું છે હું કરીને જ રહીશ। એમાં એમને કોઈ પણ રીતે એમને એ પોતાના જે ઉદ્દેશ હતો એનાથી આડે અવડે ગયા નહીં। हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। એટલે કે છે કે દેશના મહત્વપૂર્ણ પદ ઉપર રહ્યા અને પદ ઉપર રહેતા એમને બધા અધિકારો પણ પ્રાપ્ત થયા। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया और अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। એટલે હંમેશા એમને શું કર્યું હતું, પોતાના જે અધિકારો હતા પોતાનું જે કામ હતું હંમેશા એમને આત્મસંયમથી, એટલે કે હંમેશા એમને જે બી કામ કર્યું હતું એ કામ હંમેશા પૂર્ણ મન લગાવીને એમને કામ કર્યું હતું અને એમને જે અધિકાર આપ્યા હતા, જે કર્તવ્ય આપ્યા હતા એ બધાનું એમને શું કર્યું હતું, પૂરેપૂરું પાલન કર્યું હતું। કોઈ દિવસ એ પોતાના અધિકારો અને કામથી દૂર ભાગ્યા હતા नहीं। शायद इसीलिए शास्त्री जी उन्हें अधिक लोकप्रिय भी हो सके। એટલે શાસ્ત્રી જી કેવા થયા, લોકપ્રિય બન્યા। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। એટલે એમને શું કર્યું હતું, 19 ડિસેમ્બર અને 1964 19 ડિસેમ્બર અને 1964ની અંદર એમને વિદ્યાર્થીઓ સંબંધિત જે એમના થોડાક વિચાર એ લોકો જે મુસ્લિમ હતા, અલીગઢની અંદર મુસ્લિમ જે વિશ્વવિદ્યાલય હતું એનામાં દીક્ષાંત સમારોહની અંદર 19 ડિસેમ્બર અને 1964માં છોકરાઓને એમને એવા વિચાર વ્યક્ત કર્યા હતા कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। એટલે કે છે કે તમારી મંજિલ કોઈ પણ હોય પણ તમે સૌથી પહેલાં તમારા દેશના એક નાગરિક છો અને નાગરિક તરીકેનું ફરજ તમારે હંમેશા નિભાવવાની। यहाँ आपको संविधान द्वारा
यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन उससे कुछ कर्तव्यों का बोझ आता है। એટલે કે છે કે સંવિધાન દ્વારા આપણને કેટલાક અધિકારો આપ્યા હોય, કેટલાક કર્તવ્યો આપ્યા હોય, પરંતુ આપણને જે સ્વતંત્રતા મળી છે, जिसे समझना चाहिए हमारा देश प्रजातांत्रिक है। આપણો देश કેવો છે कि આપણે और जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन उस स्वतंत्र का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। એટલે કે છે કે આપણને ને જે આપણો દેશ એક લોકશાહી દેશ છે, બરાબર, આપણને સ્વતંત્ર પૂર્ણ છે, આપણે બધી જગ્યાએ હરીફરી શકીએ, આપણે સ્વતંત્ર છીએ, આપણે કોઈના બંધનમાં મુક્ત નથી। તો કે જે આપણો એક જે દેશ છે, આપણે ગુલામીમાંથી મુક્ત થઈ ગયેલા છીએ, આપણે કોઈની ગુલામીની હેઠળ નથી, આપણો દેશ આઝાદ થઈ ગયેલો છે। એટલે કે જે આપણને નિજી સ્વતંત્રતા દેતા, એટલે આપણને આપણી મરજીની જે સ્વતંત્રતા છે, આપણને સ્વતંત્રતા મળેલી છે જે, બરાબર, તેનો આપણે શું કરવો જોઈએ, એક વ્યવસ્થિત ઉપયોગ સમાજ માટે સમાજના હિત માટે એ, અને જે બધા પ્રતિબંધો હોય એનું પણ આપણે નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ। प्रतिबंध तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्म संयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी कि जिसे याद रखने की ज़रूरत है। એટલે કે છે કે શાસ્ત્રીજીએ શું કીધું હતું, કહ્યું હતું કે અધિકાર, આપણા કર્તવ્ય અને આત્મસંયમતા, બરાબર, આપણે આત્મવિશ્વાસ હોવો જોઈએ ને, તો કે એના માટે સંપૂર્ણ મહત્ત્વપૂર્ણ વાત શાસ્ત્રીજીએ એ કઈ હતી ને એ પણ આપણે યાદ રાખવી જરૂરી છે, બરાબર। तो આપણને ने विद्यार्थी मित्रों ये जो हमारा पाठ था कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्होंने आज हमें ये पाठ से बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीख दी है। तो हम इसमें से क्या सीखेंगे, कर्तव्य के बारे में आप लोग सीखेंगे। अपना जो कर्तव्य है, हम कभी वो कर्तव्य का पालन करेंगे ना, हमारा जो कर्तव्य से हम कभी ही क्या हो गए, कर्तव्य से कभी भी हम लोग मुंह नहीं मोड़ेंगे। अपना कर्तव्य जो है, आपका कर्तव्य क्या है, अभी तो छोटे हो, आपका कर्तव्य यही है कि हम ध्यान से पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स लाए और घर में मम्मी पापा को हेल्प करें और अपना ध्यान रखें, अपना काम खुद से करें। आपका यही कर्तव्य है ना। अभी तो कुछ कर्तव्य है नहीं आपका, आप तो अभी बहुत छोटे हो, आप तो 8वीं कक्षा में हो, तो अभी इतने भी छोटे नहीं हो और इतने भी बड़े भी नहीं हो। आपको अभी तो सिर्फ पढ़ाई ही करनी हो, पढ़ाई के और तो कुछ करना नहीं है आपको। तो आप ध्यान से पढ़ाई करना। तो चलो आज हम उसके बाद हम शब्दार्थ क्या करोगे, हिंदी की नोटबुक में लिख देना, है ना। चलो उसके बाद क्या करना है, स्वाध्याय के 4 प्रश्न है, और उसके बाद में क्या आता है, हमारा व्याकरण का टॉपिक आता है। तो हम पहले स्वाध्याय के प्रश्न देख लेते हैं। स्वाध्याय के प्रश्न लिख देना, हाँ, घर पे। चलो पहला प्रश्न है कि शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया और क्यों। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को छोड़कर गए थे। उसकी मृत्यु के बाद सफलतापूर्वक संभाल कर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का जीवन कैसा था, चरित्र सीधा साधारण और निर्मल था। वह अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म उनका एक उद्देश्य रहता था। उनके गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और आगे बढ़ाने का काम पूरा कर रहे थे। यही हमारा पहला प्रश्न था। और उसके बाद में आएगा दूसरा प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा था।
हमने पाठ में देखा था ना, तो सुनो। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था? एक साधारण परिवार में उनकी परवरिश भी हुई थी। प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे और सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी, जनसेवा की भावना अनेक व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन गई थी। उनकी गुण ये महात्मा गांधी के थे। शास्त्री जी ने अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने भी अछूतोद्धार का कार्यक्रम भी चलाया और ऐसे गांधी जी के आदर्श का गहरा प्रभाव पड़ा। तीसरा प्रश्न है कि शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? शास्त्री जी के कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। उन्हें गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए और इसी तरह उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत का 1937 में निर्वाचन से हुई। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था हमारा तीसरा प्रश्न। उसके बाद आता है चौथा, छात्रों के दीक्षांत समारोह के विचार। वो कहाँ पे आएगा? हमने लास्ट में का जो पैराग्राफ पढ़ा ना, वही उसका जवाब है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, पहले क्या हो? अपने देश के नागरिक। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आपका कुछ कर्तव्य भी है और देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली और इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। ये था हमारे स्वाध्याय के प्रश्न। तो आज आप होमवर्क में शब्दार्थ लिखना, स्वाध्याय लिखना और उसके प्रश्न भी तैयार कर देना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।